تمہارا نبی ہجرت کے بعد بھی گناہگار اور عیسیٰ جھولے میں نبوت کا اعلان کر رہا ہے. ما تقدم وما تاخیر من جنبے کا. کہاں لے جاؤ گے نبی کو؟ انی عبداللہ عطانے الکتاب وجلنی نبیہ. کتنے بیوقوف ہیں یہ کہ یہودی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے بے تکے جواب کو سن کر آج تک خاموش ہیں. اتنی بیوقوف قوم میں نے نہیں دیکھی. ایسا بے تکا جواب جناب عیسیٰ کا اور آج تک خاموش ہیں. جواب سے سوال کا کوئی تعلق نہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھ سے کتاب عطا کی اور ابھی سے نبوت پر فائز کیا ہے. یہودیوں کو تو چاہیے تھا کہ مریم سے کہتے کہ کہاں بھیج دیا ہم کو. ہمارا سوال کچھ تھا جواب کچھ دے رہا ہے. جناب عیسیٰ کو تو یہ چاہیے تھا کہ کیوں کہ یہودی عصمت مریم کے متعلق سوال لے کر لا رہے تھے. اس لیے یہ کہتے کہ میری ماں پاک ہے طاہرہ ہے میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں. بھائی آپ سے کس نے پوچھا تھا آپ نبی ہیں یا نہیں؟ تو اصل معاملہ کیا تھا؟ اتنے بیوقوف ہیں یہودی یا ان بیوقوفوں پر سارے عقل مندوں کو قربان کر دوں. آج تک مریم کی عصمت و طہارت میں شک نہیں کیا. حالانکہ جواب کچھ اور تھا سوال کچھ اور تھا. سوال سے جواب کا کوئی ربط نہ تھا. لیکن یہودی ہیں عیسائی ہیں کافر ہیں ملحد ہیں جو بھی آپ نام دیں انہیں مگر اتنا شعور ضرور رکھتے ہیں. شک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اتنا ایمان تو وہ عیسیٰ سے پہلے بھی رکھتے تھے کہ جب اس بچے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو نبی کے والدین عیب دار نہیں ہوا کرتے. جب عیسیٰ نے کہہ دیا میں نبی ہوں تو ماں کا کردار پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے ان کا بھی عقیدہ یہ کہ نبی کے والدین ہر عیب سے مبرہ ہوا کرتے ہیں. صلوات میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. گناہ بخش دیے پہلے کے بھی اور بعد کے بھی. کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ میں تو نبی نہیں مانتا ایسے شخص کو جو ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کی زندگی گزار رہا ہو. آپ کا اجتہاد رہے یا نہ رہے میرا نبی یاسین ہے میرا نبی طٰہٰ ہے میرا نبی مزمل ہے میرا نبی مدثر ہے میرا نبی حکیم ہے میرا نبی وجہ تکمیل کائنات ہے میرا نبی گنتی کا پہلا عدد ہے میرا نبی علم اول ہے نور اول ہے عقل اول ہے دانائے سول ہے قسمی رسول ہے احمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہے. عرض کیا تھا کہ قرآن کو اس کے وارثوں سے لوگوں تو لفظ اپنے معنی اگل دیں گے. لفظ جب معصوم کی بارگاہ میں آتا ہے تو لفظ نہیں رہتا تصویر بن جاتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے بڑے مفسر ہو گئے. 6666 آیتوں میں سے آج تک یہ نہ نکال سکے کہ کتنی متشابہ کتنی محکم ہے. یہ تو رکھی ہی اس لیے تھی کہ آپ کبھی نہ سمجھ سکے. محکم کہیں متشابہ تیرے کلام یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا. اب بھی مفسروں کا الجھنا دلیل ہے. دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. اللہم صلی علی محمد محمد. متشابہات ہوتی ہے اس لیے کہ معصوم کے پاس آئیں لیکن متشابہ ہمارے لیے ہے. معصوم کی بارگاہ میں جب پہنچتی ہے تو محکم ہو جاتی ہے. معصوم جانتا ہے کہ کون سی آیت
कब, कहाँ, क्यों, किस पस मंजर में नाजिल हुई? आपको किसने कहा था कि आप तफसीरें लिखें? किसने दावतनामा भेजा था आपके पास? जब आप मासूम से हटकर तफसीरें लिखेंगे तो यही होगा, और यही होगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इत्तेहाद का पॉइंट कहाँ से लाऊं। एक तरफ गुनाहगार नबी है, एक तरफ वो नबी है जो आले मोहम्मद ने बताया। अब इन दोनों नबियों को मैं कैसे मिलाऊं? खिलाफत नहीं पड़ रहा कि आप कहें इख्तिलाफी बहस है, ये तो नबी की बात है। हमने बताया कि आपने कुरान की तफसीर करते वक्त कौले मासूम को कबूल कर लिया होता, मगर आपकी जिद का तो आलम ये है, आपके लाडलेपन का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप तो किसी मंजिल पर आकर रुकते ही नहीं। पैगंबर को कह रहे हैं कलम और कागज दे दो, मैं नौश्ता लिख दूं। पैगंबर कह रहे हैं कुरान और अहले बैत, नहीं जी, हमें कुरान काफी है, अहले बैत नहीं चाहिए। और अहले बैत ने जब कुरान मुर्तब करके अली दरबार में पेश किया तो नहीं जी, आपका कुरान नहीं चाहिए, नबी से अहले बैत नहीं लेते, अहले बैत से कुरान नहीं लेते, तो फिर लेना क्या चाहते हो? सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत से हटकर जब आप तफसीर करते हैं, जब आपको जब के मायने नहीं पता, तो फिर ये गुनाह करते ही क्यों हो आप? हमने बताया कि जम के मानी गुनाह के भी हैं, लेकिन जब अपने मरकज पर पहुंचता है लफ्ज तो मानी देता है। अगर फिरौन के लिए आए जम तो गुनाह, मूसा के लिए आए तो इम्तिहान। मूसा ने कहा था न जब हुक्म हुआ कि फिरौन के दरबार में जाओ कि लहुम अलैया जम फा खाफो अन यक्तलून, फिरौनी मुझ पर इम्तिहान लगाते हैं कि मैंने उनके आदमी को कत्ल कर दिया। यहाँ जंब के मानी इम्तिहान, और नबी के ऊपर जब इम्तिहान लगाया जाए तो नबी की शान में फर्क नहीं आता। इम्तिहान लगाने वाला मुजरिम होता है। अब कुरान की आयत पढ़ो, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपकी खुली हुई फतह इनायत की। लयग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़ीर, जब फतह मक्का के बाद कुफार मक्के के लगाए हुए सारे इल्जामात धो डाले गए जो तुझ पर लगाए गए थे कि ये मजनू है, ये दीवाना है, ये हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। नहीं, फतह मक्का के बाद तुझे मजनू कहने वाला अबू सुफियान जिस दिन जंजीरों में जकड़कर तेरे सामने अपनी बीवी हिंदा के साथ आया तो उसने भी कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुझे मजनू कहने वाले ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने तुम पर लगाए जाने वाले इम्तिहान धो डाले। जब नबी के लिए आए तो इम्तिहान है, यबागियों के लिए आए, काफिरों के लिए आए, नबूवत में शक करने वालों के लिए आए, नबी का साथ छोड़ने वालों के लिए आए, गुस्ताखानों रसूलों के लिए आए तो गुनाह है। और जहाँ गुनाह है वहाँ गजब है, और यही तो तमन्ना करता है हर मुसलमान। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमत नाजिल की, जिन पर तूने गजब किया और न गुमराह हुए, यहाँ इम्तिहान नहीं आएगा। जालिन के लिए यहाँ जालिनन गुमराह है, रास्ता भूल जाने वाले नहीं गुमराह, जिन्हें नसीबी नहीं हुआ रास्ता। तफसीरें लिखने वालों ने हजारों सफ़ात लेकर दिए, कहा मकजूब जालिन एक ही बात है। हालांकि अल्लाह ताला कोई उपस लफ्ज अपने कलाम में इस्तेमाल नहीं करता है। अगर मकजूब पर मानी मुकम्मल हो जाए तो आयत यहीं खत्म हो जाती, जालिन की जरूरत ही न थी। ये इजाफे और
कमी वेशिया तो हम करते हैं, अल्लाह नहीं करता। अगर उसने मकजूब कहा तो मकजूब और है, आगे चलकर जालिन कहा तो जालिन और है। और मैंने कहा था कि अबू कलाम आजाद ने अपनी तफसीर तर्जुमानुल कुरान में अलहदा उसके मानी बताए हैं। फराग दिली तो ये हो सकती है कि जहाँ सही बात मिले हम कबूल कर लेते हैं, इसलिए कि हमने अपने मौला से ये सुना है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। बस इख्तलाफ सिर्फ इसी बात पर तो है, हम ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, आप ये देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और भेज दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी 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 नारे सलवात। अबुल कलाम ने अक्सरियत के फलसफे को रद्द किया अपनी किताब मुबारक खातिर में ये कहकर कि किस अक्सरियत की बात करते हो, ये भी कोई अक्सरियत है कि मानने पर आए तो पिछड़े को खुदा मान ले और ना मानने पर आए तो मूसा को नबी नहीं मानती। अबुल कलाम ने क्योंकि अच्छी बात की इसलिए हमने मान ली, अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी कि दिलदार नहीं। हम इससे ज्यादा और क्या फराग दिली का मुजाहिरा करें, क्या अकीदा छोड़ दें। अकीदा हम छोड़ नहीं सकते। 15 लाख मुरब्बा मील में फैली हुई सल्तनत को अली ने जूते की नोक पर रख लिया था, इसलिए कि अकीदे की शर्त आ गई थी। कहा जाओ किसी की सीरत नहीं, कुरान और सुन्नत आप मुलाहिजा फरमाएं। मकजूब और जालिन, मकजूब वो जिन पर अल्लाह का गजब हो। गजब किन पर नाजिल होता है, जिन पर हुज्जत तमाम हो गई हो, वरना उसके अदल के खिलाफ की हुज्जत तमाम हुई नहीं। और वैसे ही गजब नाजिल कर रहा है, हिदायत आ जाए उसके बाद भी कोई ना माने, फिर है मकजूब। सिराते मुस्तकीम पाने के बाद जो इस रास्ते से हट जाए वो है मकजूब। मन कुंतो मौला का इकरार करने के बाद इनकार कर जाए वो है मकजूब। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिल होना कोई ऐब नहीं है, हर शख्स जाहिल है सिवाय मासूम के। जाहिल ना होते तो पढ़ते क्यों। हमारा पढ़ना ये बताता है कि हम पैदा हुए तो जाहिल थे। बदतरीज हमारे मदरसों में जाना, तदरीस करना, इम्तिहानात देना ही बताता है ना हमारी जहालत की दलील है। ये जो प्रोग्रेस है, ये जो इर्तिका है, ये इल्म के नाकिस होने की दलील है। जब नाकिस है तो जहालत है, लेकिन ना जानना कोई ऐब नहीं है। मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है, मैं अपने किसी बुजुर्ग से पूछ लेता हूँ, ये कोई ऐब तो नहीं हुआ। तो कुछ हम पढ़ते हैं, किसी से पूछ कर पढ़ते हैं, वहां से पढ़कर तो वही आए थे। जब ही तो हमने उन्हें यहाँ का पढ़ा हुआ समझते नहीं। आप लाख लिखते रहे इसलिए कि यहाँ के तो हम पढ़े हुए हैं, और अगर वो भी वहाँ के पढ़े हुए होते तो हमें उनका कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मकजूब वो जिससे सिरात मिल गई हो फिर भटके ईमान लाने के बाद, सुम्मा कफरू सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू। अब कैमरा तो लिए बैठे नहीं थे जिब्रील के उम्मत सभी देख लेती और निकाह टूट जाता। जालिन कौन, जिन तक हिदायत आई नहीं, जिन्होंने हिदायत की सूरत ही नहीं देखी, वो है यहूदी, वो है नुसारा, वो है काफिर। मकजूब वो है जो सिराते मुस्तकीम पर आकर चला गया। जालिन वो जो सिराते मुस्तकीम पर आया ही नहीं। मकजूब पर ज्यादा अजाब इसलिए कि जालिन में काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक नहीं है। जालिन में मुनाफिक, मकजूब में है
जानता है, मानता नहीं है, सलवात भेज दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी 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 नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन पर तू गजब नाक हुआ, उनका रास्ता हमने न देखा, उनसे हमें दूर रख। हर नमाज में अलहदगी का ऐलान, इनसे दूर, उनसे करीब, उनसे दूर, उनसे करीब, तवर्रा तवल्ला तवर्रा तवल्ला, यह हर मुसलमान का ईमान। इससे तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अगर इनकार कर दे तो नमाज ना, रोजा ना रहे। सलवात भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, बहुत बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कोई गैरिल मखजूब के बगैर अलहम्द पढ़ सकता है? और अनमता अलैहिम कौन? वो जिनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम नमाज में पढ़ते हैं तो हमारे तसव्वुर में होता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का रास्ता। आले मोहम्मद भी तो अलहम्द पढ़ते होंगे, वो भी जब कहते होंगे अनमता अलैहिम, वो किसका तसव्वुर लेते होंगे? वो बस नमाज तो नहीं पढ़ते थे। जब अली नमाज पढ़ते होंगे तो वो किसका तसव्वुर लेते होंगे? रसूल अल्लाह का। जब अली कहते होंगे कि परवरदिगार मुझे चला उनके रास्ते पर जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, तो उनके तसव्वुर में रसूल अल्लाह होंगे। ये साहिब नेमत है, मरकज़े नेमत है। लेकिन बात और आगे जानी है। चलो अली का भी काम हो गया, लेकिन रसूल अल्लाह किसका तसव्वुर लेते होंगे? वो भी तो यही नमाज पढ़ते होंगे। आइए हुजूर से पूछे कि जब आप कहते होंगे अनमता अलैहिम, तो आपके तसव्वुर में कौन होता होगा? तो कहा इसी दिन के लिए तो मैंने हदीस कही थी कि अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद। वो मोहम्मद जब अली का तसव्वुर लेते तो कोई ऐब नहीं, मुन्नियत की मंजिल पर है, तौहीने नबूवत नहीं है। और तौहीने नबूवत तो हुसैन के तसव्वुर से भी नहीं होती। और दलील दूं, रसूल सजदे में हुसैन पुश्त पर, बताओ किसका तसव्वुर है? सवाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर सजदे से सर उठाना चाहते हैं, नहीं तो सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी व अला व बिहम्दे 72 मर्तबा कहा। ये जो पैगंबर सजदे को तूल दे रहे हैं, तो क्या तसव्वुर के बगैर नमाज में पैगंबर को ख्याल है न हुसैन का? तब भी तो नहीं उठे। तो नमाज में हुसैन का ख्याल आने से रसूल की नमाज खराब नहीं होती, तो फिर हमारी नमाज कैसे खराब होगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। 72 मर्तबा कहा सुभान रब्बी आला व बेहमदे। और हुसैन ने भी उसी दिन कसम खाई, नाना तेरी नजर नाज बरदारी के कुर्बान, तेरे सर तो 72 मर्तबा के बाद सजदे से उठ जाएगा, लेकिन मैं जो तेरा नाम लेकर सर झुकाऊंगा तो सिमर उठा कर ले जाएगा। मेरा सर नहीं उठेगा, सिमर ले जाए तो ले जाए, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। महशर में सर उठाएंगे अब जा नमाज से, अल्लाह रे तूल सजदे शब्बीर देखना। वो रसूल के सजदे का तूल था कि 72 मर्तबा कहा सुभान अल्लाह।
और हुसैन के सजदे का तू लेके सकीना कह रही है हट जा सिमर, हट जा। हुसैन का तस्करा करने का दिल चाहता है। हुसैन लाशों पे लाशें उठा चुके, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। परवरदिगार रजा बेकजा ही वो तस्लीमन अमरे हो, तेरी रजा में खुश हूँ मेरे मालिक, तेरी मर्जी में खुश हूँ मेरे मालिक। जब वापस खेमे में आए तो दर खेमा पर हुसैन रुके, रुक कर पीछे हटे, पीछे से फिर आगे बढ़ चले, फिर पीछे आए, फिर आगे आए, कभी दरवाजे तक जाते, फिर पीछे ख्याल आता कि बच्चे को पूछेगी तो रबाब को क्या जवाब दूंगा। और जब पीछे हटते तो कहते थे रजन बे के जाही वो तस्लीमन ले हमरे हो, और जब आगे बढ़ते तो कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन से खेमे का पर्दा ना उठा, हुसैन की आवाज फिजा के कानों तक पहुंच गई, खेमे का पर्दा उठा दिया, शहजादा आ गया, हुसैन अंदर गए। कहा रबाब कहाँ है? अब रबाब दुखिया को क्या पता कि क्या क़यामत हो गई। वहीं से कहते हैं कि मौला लेकिन जब रबाब आई तो खाली हाथ नहीं आई, खाली झूला लेकर आई। मेरा बच्चा आ गया होगा। हुसैन के सामने आकर खड़ी हो गई, वारिस को देखा झूला हाथ से गिरा। हुसैन रबाब के करीब पहुंच कर कहते रबाब तू मुझे क्या समझती है? रबाब कहती है फर्जंद रसूल आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप इमाम हैं, मेरे हाकिम हैं आप। रबाब जो कुछ मैं कहूँगा यकीन करेगी। हुसैन को लफ्ज़ नहीं मिल रही थी कि माँ को समझाए कैसे कि करबला में क्या कयामत हो सकती है। कहा हाँ मौला मान लूंगी। कहा रबाब मैं इमाम कसम खा कर कह रहा हूँ कि तेरा बच्चा मर गया, यकीन कर ले रबाब तेरा बच्चा मर गया। रबाब कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने कहा अम्मा फिजा इधर आओ। इमाम को आज माँ की बहुत याद आ रही है, किसे कहे माँ। फिजा करीब आया मेरे शहजादे, फरमाया ज़ैनब से छिपा कर पुराना लिबास ले आओ। फिजा गई संदूक खोला, बोसीदा लिबास निकाला, चादर में छिपा कर ला रही है कि एक मर्तबा ज़ैनब की नजर पड़ी। फिजा कहाँ जा रही है? फिजा लपकी ज़ैनब करीब पहुंची, फिजा के सामने खड़ी हो गई। जाने नहीं दूंगी, बताओ मुझे क्या लेकर जा रही हो? फिजा एक जुमला कहती है शहजादे ने ये लिबास मांगा है। तो ज़ैनब कहती है तू छिपा क्यों रही है? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई ने कफन मांगा है? कफन आया, हुसैन ने पहना। बहन भाई बैठ गए। ज़ैनब ने एक मर्तबा भाई के गिरेबान के बटन खोले, भाई के गले को बोसा दिया और कहा भैया माफ करना, अम्मा की वसीयत पूरी कर रही हूँ। हुसैन दरे खेमा पर पहुँचे। ज़ैनब सलाम, रुकैया सलाम, कुलसूम सलाम, उम्मे परवा सलाम, रबाब सलाम, उम्मे लैला सलाम। सबको सलाम करके सलाम किया। खेमे के दर पर जब हुसैन पहुंचे तो एक 5 बरस की बच्ची ने आकर बाप का दामन पकड़ा। बाप कहाँ जा रहे हो? बाबा कहाँ जा रहे हो? सकीना के सर पर हाथ पैर कर। हुसैन कहते हैं सकीना हो सका तो तुम्हारे लिए पानी की सबील करेंगे। सकीना ने घबरा कर दोनों हाथ दामन से छोड़ दिए। दोनों हाथ जोड़कर कहती है तेरे सर की कसम बाबा, मुझे प्यास नहीं है। बाबा कसम ले लो, जो कभी पानी मांगू। चचा अब्बास भी पानी लेने गए थे,
अम्मू नहीं आए मैं पानी नहीं मांगूंगी। बताओ हुसैन क्या करे, सकीना को क्या जवाब दे। सकीना को समझाया, सकीना एक जुमला कहती है, बाबा बाबा इतना बता दो अगर रात को वापस ना आए तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी, मुझे तो किसी सीने पर नींद नहीं आती। हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, सकीना आज से तुम अपनी माँ रबाब के सीने पर सोया करना। सकीना को क्या पता, भोलेपन में सकीना कहती, बाबा अम्मा रबाब के सीने पे तो भैया अली असगर सोता है। हुसैन ने कहा, नहीं सकीना, आज से असगर हमारे पास सोएगा, खुदा हाफिज सकीना। हुसैन गया, सकीना तड़पती रह गई। चलते चलते सकीना ने कहा, बाबा खुदा हाफिज, लेकिन चैन न आएगा, जवाब की बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को जंगल में चली आऊंगी बाबा। मौलाना